नमस्कार दोस्तों, बैंक प्रमोशन एग्जाम गाइड में आपका स्वागत है। आज हम आरबीआई के नोट एक्सचेंज और रिफंड रूल्स सीखेंगे, यानी कटे फटे या अधूरे नोटों को बदलने के असली नियम। अगर आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझ गए, तो नोट रिफंड से जुड़ा कोई भी सवाल एग्जाम में आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स बैंक ब्रांच की नोट और कॉइन फैसिलिटी के बारे में सही हैं? Which of the following statements regarding bank branch facilities for notes and coins are correct? 1. Bank branches must provide note and coin exchange facilities to both their customers and non-customers. 2. 50 paise coins are no longer legal tender and can be refused for transactions. 3. Small finance banks, within their first 2 years, and payment banks may, at their option, exchange mutilated and imperfect notes. 4. All bank branches are mandated to issue fresh good quality notes and coins of all denominations. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 3 and 4 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 1, 3 और 4 सही हैं। बैंकों को अपने कस्टमर्स और नॉन कस्टमर्स दोनों को नोट एक्सचेंज फैसिलिटी देनी होती है। स्टेटमेंट 2 गलत है, क्योंकि 50 पैसे के सिक्के अभी भी लीगल टेंडर हैं। सिर्फ 25 पैसे और उससे कम के सिक्के 30 जून 2011 से बंद हो गए थे। अगला सवाल करेंसी नोटों की अलग अलग कंडीशंस के बारे में है। करेंसी नोट की हालत को बताने वाले इन स्टेटमेंट्स में से कौन से सही हैं? Which of the following statements correctly define the condition of currency notes? 1. A. Soiled note is a note that has become dirty from normal wear and tear, or is a two-piece note pasted together where both pieces belong to the same note. 2. A. Mutilated note is any note that is wholly or partially obliterated, shrunk, or altered. 3. An imperfect note is a note of which a portion is missing or which is composed of more than two pieces. 4. A note composed of more than two pieces is classified as a mutilated note. Option A. 1 and 4 only. Option B. 2 and 3 only. Option C. 1, 2 and 3 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन ए। स्टेटमेंट 1 और 4 सही हैं। सॉइल्ड नोट यानी गंदा नोट वह होता है जो आम इस्तेमाल से मैला हो गया हो या एक ही नोट के 2 टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया हो। अगर नोट के 2 से ज्यादा टुकड़े हों या कोई हिस्सा गायब हो, तो वो म्यूटिलेटेड नोट कहलाता है, जैसा कि स्टेटमेंट 4 में है। क्या आपको लगता है कि आरबीआई से खराब नोट की वैल्यू वापस पाना आपका अधिकार है? देखते हैं। एक दावा है और एक कारण है। दावा है कि किसी भी खोए, चोरी हुए या कटेफटे नोट की वैल्यू आरबीआई से वापस पाना नागरिक का अधिकार है। कारण है कि आरबीआई ग्रेस के तौर पर कुछ शर्तों के तहत ऐसे नोटों का रिफंड दे सकता है। Consider the following statements. Assertion A. A person is entitled as a right to recover from the Reserve Bank of India the value of any lost, stolen, or mutilated banknote. Reason R. The Reserve Bank of India may, as a matter of grace, prescribe circumstances and conditions under which the value of mutilated or imperfect notes may be refunded. Option A. Both A and R are true, and R explains A. Option B. Both A and R are true, but R does not explain A. Option C. A is true, but R is false. Option D. A is false, but R is true. सही जवाब है ऑप्शन डी। दावा ए गलत है,
लेकिन कारण आर सही है। आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 28 के मुताबिक कोई भी व्यक्ति अधिकार के तौर पर यानी एज ए राइट खराब नोट की वैल्यू क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन आरबीआई ने लोगों की सहूलियत के लिए मैटर ऑफ ग्रेस के तौर पर रिफंड रूल्स बनाए हैं। 2018 में नोट रिफंड रूल्स में एक जरूरी बदलाव क्यों किया गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट रिफंड अमेंडमेंट रूल्स 2018 के मुताबिक 2009 के रूल्स में बदलाव क्यों किया गया था? According to the Reserve Bank of India, Note Refund Amendment Rules 2018, why were amendments made to the Note Refund Rules 2009? Option A. To introduce new penalties for banks failing to exchange notes. Option B. To enable the public to exchange mutilated notes in the Mahatma Gandhi new series, which are smaller, and to revise the minimum area required for full value payment. Option C. To stop the exchange of all notes from series prior to the Mahatma Gandhi new series. Option D. To delegate the power of note exchange from bank branches to RBI regional offices only. सही जवाब है ऑप्शन बी। ये बदलाव इसलिए किए गए ताकि लोग महात्मा गांधी न्यू सीरीज के कटेफटे नोट एक्सचेंज कर सकें। ये नए नोट पुराने नोटों से साइज में छोटे थे, इसलिए फुल वैल्यू पेमेंट के लिए जरूरी मिनिमम एरिया के नियमों को भी बदला गया। बैंक आपसे गंदे नोट तो ले लेते हैं, पर क्या वो उन्हें वापस पब्लिक को दे सकते हैं? बैंक काउंटरों पर लिए गए गंदे नोटों को सरकारी बकाया पेमेंट या पब्लिक अकाउंट में क्रेडिट के लिए एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन किसी भी हाल में उन्हें दोबारा जारी करने लायक नोटों के तौर पर जनता को नहीं किया जाएगा। Sold notes accepted by bank counters shall be accepted for payment of government dues and for credit to public accounts, but in no case shall they be to the public as reissuable notes. Option A. Sold. Option B. Credited. Option C. Issued. Option D. Shown. सही जवाब है ऑप्शन सी, इशूड। आरबीआई का साफ निर्देश है कि बैंकों को गंदे यानी सॉइल्ड नोटों को एक्सेप्ट तो करना है, लेकिन उन्हें वापस सर्कुलेशन में नहीं डालना है। मान लीजिए आप बैंक में बिजली का बिल भरने के लिए गंदे नोट देते हैं, तो बैंक उन्हें ले लेगा, लेकिन वही नोट वो किसी और ग्राहक को कैश निकालते वक्त नहीं दे सकता। चलिए अब क्वेश्चन 1 से 5 तक का रिवीजन करते हैं। बैंकों को नॉन कस्टमर्स के नोट भी बदलने होंगे। 50 पैसे लीगल टेंडर हैं। सॉइल्ड नोट गंदे होते हैं। म्यूटिलेटेड नोट के हिस्से गायब या 2 से ज्यादा होते हैं। नोट रिफंड एक ग्रेस है, यह आपका कानूनी अधिकार नहीं है। 2018 के रूल्स नए छोटे महात्मा गांधी सीरीज नोटों के लिए थे। बैंकों को गंदे नोट वापस पब्लिक को इशू नहीं करने चाहिए। किन सूरतों में बैंक आपका नोट रिजेक्ट कर सकता है? अगला सवाल देखते हैं। नोट रिफंड रूल्स के तहत नोटों को रिजेक्ट करने के बारे में कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं? Which of the following statements regarding the rejection of notes under the note refund rules (NRR) are correct? 1. A banknote with a political or religious slogan written across it ceases to be legal tender and will be rejected. 2. A note bearing a pay or paid stamp from an RBI issue office or bank branch, if presented for payment again, shall be rejected. 3. A note that is found to be deliberately cut, torn, altered, or tampered with may be rejected. 4. Banknotes with general scribbling or color stains, which do not obscure features, continue to be legal tender and can be exchanged. Option A. 1 and 2 only. Option B. 2, 3 and 4 only.
Option C. 1, 3 and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन डी। ये सभी स्टेटमेंट्स सही हैं। अगर नोट पर कोई पॉलिटिकल या धार्मिक नारा लिखा हो तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर किसी नोट पर पे या पेड की मुहर लगी है, मतलब उसका पेमेंट पहले ही हो चुका है, उसे भी रिजेक्ट किया जाएगा। और जानबूझकर काटे गए नोट भी रिजेक्ट हो सकते हैं। अगर नोट बहुत ही ज्यादा खराब, जला हुआ या चिपका हुआ हो तो क्या करें? अगर नोट बहुत ज्यादा नाजुक, जले हुए या आपस में चिपके हुए हों और नॉर्मल हैंडलिंग न झेल सकें, तो बैंकों को क्या करना चाहिए? What procedure should bank branches follow for notes which are extremely brittle, charred, or inseparably stuck up together and cannot withstand normal handling? Option A. Exchange them over the counter immediately by levying a special service charge. Option B. Accept them against a receipt and send them to the linked currency chest for a 30-day adjudication. Option C. Refuse to accept them and advise the holder to tender them to an issue office of the Reserve Bank of India. Option D. Adjudicate them under the normal procedure and pay half value. सही जवाब है ऑप्शन सी। बैंकों को ऐसे नोट एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए। उन्हें कस्टमर को यह सलाह देनी चाहिए कि वे इन नोटों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के किसी इशू ऑफिस में जमा करें। मान लीजिए किसी की दुकान में आग लग गई और नोट जलकर चिपक गए, तो उसे वे नोट सीधे आरबीआई ऑफिस ले जाने होंगे, बैंक ब्रांच में नहीं। अगर कोई नॉन चेस्ट ब्रांच कटेफ्टे नोटों का फैसला नहीं कर पाती, तो पेमेंट में कितना टाइम लग सकता है? अगर कोई नॉन चेस्ट बैंक ब्रांच कटेफ्टे नोटों पर फैसला नहीं कर पाती है, तो वह कस्टमर को पेमेंट की संभावित तारीख के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना समय बता सकती है? If a non-chest bank branch is unable to adjudicate mutilated notes, what is the maximum time limit that shall be informed to the tenderer as the probable date of payment? Option A. 7 days. Option B. 15 days. Option C. 30 days. Option D. 45 days. सही जवाब है ऑप्शन सी, 30 दिन। अगर कोई नॉन चेस्ट ब्रांच खुद म्यूटिलेटेड नोट का फैसला नहीं कर सकती, तो वह नोटों को अपने लिंक्ड करेंसी चेस्ट में भेज देती है। इस केस में कस्टमर को दी जाने वाली रसीद पर पेमेंट की संभावित तारीख 30 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर बैंक आपकी शिकायत पर जवाब न दे, तो आप ओम्बड्समैन के पास कब जा सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति नोट एक्सचेंज के बारे में बैंक में शिकायत दर्ज कराता है और बैंक जवाब नहीं देता है, तो वह कितने समय बाद ओम्बड्समैन के पास शिकायत कर सकता है? If a person lodges a complaint with a bank branch regarding note exchange and the bank does not respond, after what period can the complainant lodge a complaint with the Ombudsman? Option A. 7 days. Option B. 15 days. Option C. 30 days. Option D. 60 days. सही जवाब है ऑप्शन सी, 30 दिन। रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 के तहत अगर बैंक आपकी शिकायत मिलने के 30 दिनों के अंदर जवाब नहीं देता है या आप उसके जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, तब आप ओम्बड्समैन में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। नोटों के फैसले और निपटान के बारे में कुछ जरूरी बातें अगले सवाल में। नोटों के फैसले और निपटान
यानी एडजुडिकेशन और डिस्पोजल के बारे में इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं? Which of the following statements regarding the adjudication and disposal of notes are correct? 1. Full value paid notes remitted by chest branches to an RBI issue office are treated as chest remittance. 2. Half value paid notes and rejected notes must be packed separately from full value notes when sent to the RBI. 3. The objective of RBI training for prescribed officers is to provide knowledge and instill confidence in the process of adjudicating defective notes. 4. All chest branches are required to submit a monthly statement to their RBI issue office showing the number of notes adjudicated. Option A. 1 and 2 only. Option B. 2, 3 and 4 only. Option C. 1, 3 and 4 only. Option D. All of the above. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी सभी स्टेटमेंट्स सही हैं। जिन नोटों का फुल पेमेंट किया गया है उन्हें चेस्ट रेमिटेंस माना जाता है। हाफ वैल्यू और रिजेक्टेड नोटों को हमेशा फुल वैल्यू वाले नोटों से अलग पैक किया जाना चाहिए। प्रेस्क्राइब्ड ऑफिसर्स की ट्रेनिंग का मकसद ही उन्हें नोटों का सही फैसला करने का ज्ञान और कॉन्फिडेंस देना है। चलिए अब क्वेश्चन 6 से 10 तक का रिवीजन करते हैं। पॉलिटिकल नारों या पेड स्टैंप वाले नोट रिजेक्ट हो जाते हैं। जले हुए या नाजुक नोट सीधे आरबीआई इशू ऑफिस ले जाने चाहिए। नॉन चेस्ट ब्रांच को 30 दिन के अंदर पेमेंट की तारीख बतानी होती है। बैंक 30 दिन में जवाब न दे तो ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं। चेस्ट ब्रांच को हर महीने आरबीआई को एक मंथली स्टेटमेंट देना होता है। अगर कोई जानबूझकर काटे गए नोटों का बंडल ले आए तो क्या होगा? अगर कोई बड़ी संख्या में जानबूझकर काटे, फाड़े या बदले गए नोट लाता है तो आरबीआई को रिपोर्ट करने के अलावा और क्या एक्शन लिया जाएगा? In addition to reporting to the RBI issue department, what action shall be taken if a large number of deliberately cut, torn, altered, or tampered notes are tendered? Option A. The matter shall also be reported to local police. Option B. The tenderer shall be immediately detained by bank security. Option C. The notes shall be returned to the tenderer with a reject stamp. Option D. The bank branch shall levy a high service charge on the tenderer. सही जवाब है ऑप्शन ए। ऐसे सभी मामलों की जानकारी आरबीआई को तो दी ही जाती है, लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या में जानबूझकर काटे गए नोट लाता है तो इस मामले की सूचना लोकल पुलिस को भी दी जानी चाहिए। मान लीजिए कोई जानबूझकर 100 नोटों को एक ही पैटर्न में काट कर लाता है तो यह एक संदिग्ध एक्टिविटी है और इसे पुलिस को रिपोर्ट करना जरूरी है। आखिरी सवाल, ब्रांच में सरप्राइज विजिट और नियमों का पालन न करने पर क्या होता है, इस पर है। एक दावा है कि रीजनल मैनेजर्स को नोट एक्सचेंज फैसिलिटी की कंप्लायंस जांचने के लिए सरप्राइज विजिट करनी चाहिए। कारण है कि निर्देशों का पालन न करने पर इसे वायलेशन माना जाएगा और पेनल्टी लगेगी। Consider the following statements. Assertion: A regional or zonal managers of banks must pay surprise visits to branches to report on compliance with note exchange facilities. Reason: any non-compliance with the issued instructions shall be viewed as a violation and will attract penalties. Option A. Both A and R are true, and R explains A. Option B. Both A and R are true, but R does not explain A. Option C. A is true, but R is false. Option D. A is false, but R is true. सही जवाब है ऑप्शन बी। यहाँ दावा और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण दावे का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। यह सच है कि मैनेजर्स को सरप्राइज विजिट करनी होती है,
यह भी सच है कि नियम न मानने पर पेनल्टी लगती है, लेकिन पेनल्टी लगना वो कारण नहीं है जिसकी वजह से यह काम मैनेजर्स को ही सौंपा गया है। ये दोनों पॉलिसी के अलग अलग लेकिन जुड़े हुए पॉइंट्स हैं। दोस्तों, आज के सेशन में आपने आरबीआई के नोट एक्सचेंज और रिफंड प्रोसेस को पूरी तरह समझ लिया। सोइल्ड और म्यूटिलेटेड नोट की परिभाषा से लेकर फाइनल एडजुडिकेशन तक। एग्जाम के लिए नोट रिजेक्शन के क्राइटेरिया और ओम्बड्समैन की 30 दिन वाली टाइमलाइन को जरूर दोहराएं। ऐसे ही और शानदार बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स और आरबीआई अपडेट्स सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और दिलचस्प टॉपिक्स के साथ।